Morning children, welcome to class 1 computers. Children, this is our computer book IT Planet, My Bits and Bytes, computer series 1. Children, in our previous video we were doing chapter 6, that is keyboard. So children, today we will start further in the chapter, and before starting the chapter children, we will revise those topics which we have already done. So children, let us start. So children, this is chapter 6, that is keyboard. In this chapter children, we have already studied about alphabet keys and number keys. Today we are going to revise these two topics, and then we will read some special keys, about some special keys. So children, let us start. So in our previous video children, we have studied all about this keyboard. We have studied all about this keyboard children. So you can see here different keys shown by different colors. So children, first of all let us revise that in our previous video we have studied how to switch on and how to switch off a computer. So children, it is very important to know how to switch on and switch off a computer before starting any work on the computer. So now we have studied all about how to switch on and switch off a computer. Now we can perform any work on computer. अब हम कंप्यूटर पे काम करने के लिए रेडी है, as we have learnt कंप्यूटर को कैसे ऑन करना है और ऑफ करना है. तो in order to work on a computer we need to know all about the keyboard. So children, as we know, whatever instructions or the work we do using the keyboard. हमें जो भी instruction या जो भी डाटा प्रोवाइड करना है कंप्यूटर को, वी डू यूजिंग द कीबोर्ड. तो इसकी वजह से वी शुड नो ऑल अबाउट द कीबोर्ड. नाउ चिल्ड्रन, हियर इज कीबोर्ड. एज वी नो चिल्ड्रन, राइटिंग ऑन अ नोटबुक, यू यूज़ पेंसिल टू राइट इन अ नोटबुक. हमें अगर नोटबुक में लिखना होता है तो हम पेंसिल यूज़ करते हैं. सिमिलरली चिल्ड्रन, इन सेम वे, if you want to write on a computer, you use keyboard. And children, writing on a computer using the keyboard is called typing. So children, here is the keyboard. We are going to read about keyboard. You use pencil to write on a notebook. In the same way, a keyboard is used to write on a computer screen. Same as we use pencil for writing in a notebook, we use keyboard to write on a computer screen. And the process of writing on a computer using the keyboard is called typing. So children, in our previous chapters also we have studied this word typing. पहले भी हमने पढ़ा है जब हम पढ़ रहे थे द यूजेस ऑफ कंप्यूटर, मीन्स ऑल द यूजेस ऑफ कंप्यूटर, वेयर ऑल कंप्यूटर्स आर यूज्ड एंड व्हाई दीज कंप्यूटर्स आर यूज्ड. जब भी हमने पढ़ा कि कंप्यूटर के यूजेस का क्या हैं और ये कहाँ यूज़ होते हैं और किस लिए यूज़ होते हैं. इन दैट वी स्टडीड दैट कंप्यूटर्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर टाइपिंग लेटर्स और सेंडिंग मैसेजेस. सो टाइपिंग लेटर्स और सेंडिंग मैसेजेस आर द वर्क वेयर वी नीड टू टाइप. And this typing is a way of writing. It is a way of writing. ये एक तरह का लिखने का तरीका है जिसमें हम कीबोर्ड को यूज़ करके लिखते हैं. तो हम जो भी कंप्यूटर पर लिखते हैं हम कीबोर्ड को यूज़ करके ही लिखते हैं या टाइप करते हैं. तो चिल्ड्रन, नेक्स्ट इज द लैपटॉप, sorry, the keyboard. So here you can see the picture of keyboard, and here children, the first row, you can see the first row. This is first row. Here you can see written as F1, F2, F3 and F12. तो children, F1 से लेकर के F12 तक जो कीज़ हैं ये these are 12 in number. ये 12 हैं नंबर में, and these keys are used for doing
वन और द अदर फंक्शन और द टास्क। इन सभी की के कुछ ना कुछ फंक्शन या टास्क होते हैं, हम इसको यूज़ करके कुछ ना कुछ टास्क करते हैं या फंक्शन इनके फंक्शंस को यूज़ करते हैं। बट चिल्ड्रन, यू आर नॉट गोइंग टू रीड more about these keys. When you go to the higher classes, you will be reading about it in detail, but you should know the arrangement of these keys in the keyboard. That is why I have told you. तो ये जो सबसे ऊपर वाली रो है इसको हम फंक्शन कीज़ बोलते हैं, और ये फंक्शन कीज़ 12 होते हैं नंबर में, F1 से लेकर के F12 तक। अब चिल्ड्रन, इसके बाद वी हैव अनदर सेट ऑफ कीज़, हमारे पास कुछ और कीज़ है। यू कैन सी फंक्शन की के नीचे चिल्ड्रन, कैन यू सी देर आर सम कीज़ रिटन एज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। यहाँ पे हमारे पास कुछ कीज़ है जिसमें नंबर्स लिखे हुए हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 0। यहाँ पे 1 से लेकर के 0 तक नंबर्स लिखे हुए हैं। इन नंबर कीज़ को हम कहते हैं नंबर की, इनको हम नंबर कीज़ कहते हैं। सो चिल्ड्रन, दीज आर द नंबर्स, यूजिंग दीज नंबर्स वी कैन डू एनी काइंड ऑफ कैलकुलेशंस। हम कर सकते हैं या टेबल्स लिख सकते हैं, और ईजी टू से ईजी और डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हम कर सकते हैं। सो चिल्ड्रन, इन यूजिंग दीज नंबर there are 10 numbers 1 to 9 and 0. Using these number we perform all the calculations. So children, ये इन्हें हम नंबर कीज़ कहते हैं। These keys are called number, NUMBER, नंबर KEYS, कीज़, इनको हम नंबर कीज़ कहते हैं। इसके अलावा चिल्ड्रन, हमारे पास कुछ और यहाँ पे कीज़ हैं, ये इनको यहाँ पे भी यू कैन सी सम नंबर्स रिटन। हियर ऑल्सो वी हैव कीज़ ऑन विच देर आर नंबर्स रिटन, द सेम नंबर्स आर रिटन 1 to 9 and 0। वही 10 नंबर्स यहाँ पे भी आपको लिखे हुए मिल जाएंगे 1 to 9 और 0। बट चिल्ड्रन, इनको हम न्यूमेरिक कीपैड बोलते हैं, हम इनको न्यूमेरिक कीपैड बोलते हैं। इन नंबर कीज़ को यूज़ करके भी हम वही काम करते हैं जो हम नंबर कीपैड को यूज़ करते हैं। तो देर आर 2 सेट ऑफ नंबर कीज़, एक को हम नंबर कीज़ बोलते हैं और दूसरे को हम न्यूमेरिक कीपैड बोलते हैं। सो चिल्ड्रन, इफ़ समबडी आस्क how many number keys are found on the keyboard, you will say there are 2 number keys found on the keyboard. So children, there are 2 set of number keys found on the कीबोर्ड। एक हमारे लेफ्ट हैंड साइड में होता है जिसको हम न्यूमेरिक कीपैड बोलते हैं, दूसरा हमारे राइट हैंड साइड में होता है जस्ट बिलो द फंक्शन की एंड अबव द अल्फ़ाबेट की। तो एकदम फंक्शन की के नीचे और अल्फ़ाबेट की के ऊपर इसको हम फंक्शन की कहते हैं। इसके अलावा चिल्ड्रन, वी हैव सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट मीन्स A to Z, लेटर्स A to Z, इनको हम अल्फ़ाबेट कीज़ कहते हैं। सो चिल्ड्रन, द कीज़ मार्क्ड ऑन योर कीबोर्ड आर द अल्फ़ाबेट कीज़। एज वी नो, दीज आर द अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अब इसमें हमारे पास A से लेकर के Z तक कीज़ होते हैं, एंड दीज कीज़ आर 26 इन नंबर, ये 26 नंबर में होते हैं। सो चिल्ड्रन, यूजिंग दीज कीज़ वी परफॉर्म एनी काइंड ऑफ राइटिंग वर्क। हमको जो भी लिखना होता है हम इनको यूज़ करके लिखते हैं। टेक्स्ट हो, लेटर्स हो, एप्लीकेशंस हो, या कोई भी डॉक्यूमेंट हमको बनाना है, हम इन लेटर्स को यूज़ करके लिखने का काम करते हैं और टाइपिंग का काम करते हैं। सो चिल्ड्रन, दीज आर द अल्फ़ाबेट कीज़ एंड दीज आर प्रेजेंट जस्ट बिलो द नंबर कीज़। आप देख सकते हो इनके ऊपर नंबर कीज़ है और नंबर कीज़ के ठीक नीचे अल्फ़ाबेट कीज़ है। दीज आर अल्फ़ाबेट कीज़ and these are found on our left hand side, हमारे left hand side के तरफ होते हैं। So we have studied about number keys and alphabet keys. So children, other than these, इतना तो हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, other than these keys children, we have some special keys. So you can see here there is enter key, and children, same as numeric keys या number keys, we have 2 एंटर कीज़। हमारे पास 2 एंटर की होता है, एक यहाँ पे होता है और एक यहाँ पे होता है। सो इफ समबडी आस्क यू हाउ मेनी एंटर कीज़ आर फाउंड ऑन द कीबोर्ड, यू विल से
2 enter keys are found on the keyboard. So similarly here we have 2 shift keys, 2 control keys, 2 alt keys. So children, there are several keys and all these are special keys which are found twice on the keyboard. ये हमारे कीबोर्ड पे 2 बार पाए जाते हैं, तो इसलिए हम इनको, और चिल्ड्रन डू यू नो वाई दीज आर फाउंड ट्वाइस ऑन योर कीबोर्ड? ये इसलिए 2 बार पाए जाते हैं ताकि इट इज़ ईजियर फॉर अस टू इन टाइपिंग, हमें टाइपिंग करने में आसानी होती है, इसलिए हमको यहाँ पे दोनों साइड में, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में भी ये कीज़ होते हैं और राइट हैंड साइड में भी की होते हैं. सो चिल्ड्रन, दीज आर सम स्पेशल कीज़ अबाउट विच विल बी रीडिंग इन द चैप्टर. सो चिल्ड्रन, लेट अस रीड अबाउट दीज कीज़ in detail in the chapter. So children, after this we have keyboard. Keyboard is one of the main part of the computer. So children, as we know, keyboard is one of the main part of the computer. Main part का मतलब होता है a part of computer without which we cannot have a computer or we cannot perform any work on a computer. तो computer एक important part होता है, keyboard एक important part होता है computer का, and which is used to type on computer. So this keyboard is used to type on the computer, is one of the main part of the computer which is used to type on it. It has many buttons. इसके में many buttons होते हैं and these buttons are called keys, और इन buttons को हम keys कहते हैं. तो keyboard पे as you can see there are many buttons found and these buttons are called keys. इन buttons को हम keys बोलते हैं. Now children, next point is there are 101 to 105 keys on a keyboard. तो जैसा कि हम जानते हैं, depending upon the type of keyboard we can have keys starting from 101 to 105. Now the keys on the keyboard are mainly divided into 4 parts. So children, as I told you, all the keys present on the keyboard are divided into 4 parts. जितने भी कीज़ हमारे कीबोर्ड के ऊपर होते हैं ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है डिपेंडिंग अपॉन इट्स टाइप. अब यू कैन सी व्हाट आर दीज 4 टाइप्स. दीज आर फर्स्ट वन इज अल्फ़ाबेट की, A to Z, small letter, capital letter. Using these alphabet keys we can use A to Z small letter as well as capital letter. उसके बाद we have number keys. Number keys are 10 in number, alphabet keys are 26 in number and number keys are 10 in number, starting from 1 to 9 and 0. 1 से 9 और 0 ये 10 numbers होते हैं जो कि जिन्हें हम number keys कहते हैं. उसके बाद we have special keys. Special keys में children we have enter keys, space bar, caps lock और backspace. These keys comes under special keys. उसके बाद children we have function key. 4th type of keys are function keys and these keys are starting from F1 to F12 and these are 12 in number. ये जो function keys होते हैं ये 12 in number होते हैं. Then children, let us see here is the keyboard. जो भी हमने पढ़ा उसको we can see all those things in the colored form and it will be easier for you to understand. So children, as you know, these dark colored keys are function keys. आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो dark colored keys है इनको हम function keys कहते हैं and these function keys are 12 in number. ये कितने नंबर में होते हैं? 12 नंबर में होते हैं, F1 से लेकर के F12 तक. तो इनके नंबर कितना होता है? 12 होता है. उसके बाद चिल्ड्रन बिलो फंक्शन कीज वी हैव नंबर कीज जिसके बारे में वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. एंड देन चिल्ड्रन इन नंबर कीज़ के नीचे हमारे पास होते हैं येलो कलर के जो कीज़ हैं इनको हम अल्फ़ाबेट कीज़ कहते हैं. ऑल दीज कीज़ आर अल्फ़ाबेट कीज़. ये जो येलो कलर्ड कीज़ है दीज आर अल्फ़ाबेट कीज़. उसके बाद चिल्ड्रन वी हैव एंटर कीज़. अब यहाँ पे ब्लू कलर के जो की है दिस इज़ एंटर की, दिस इज़ स्पेस बार की, दिस इज़ कैप्स लॉक की, दिस इज़ बैक स्पेस कीज़. तो दीज कीज़ बैक स्पेस, एंटर की, कैप्स लॉक एंड स्पेस बार कीज़ आर द स्पेशल कीज़. इन कीज़ को यूज़ करके हम कुछ फंक्शन
करते हैं. फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन, इफ़ यू टॉक अबाउट दिस कैप्स लॉक, अगर आप कैप्स लॉक के बारे में बात करते हैं तो दीज कैप्स लॉक की इज़ यूज्ड टू राइट ABCD जो अभी हमने पढ़ा, अल्फ़ाबेट कीज़ इन कैपिटल और स्मॉल. अगर आप कुछ भी लिख रहे हैं, इफ़ यू आर राइटिंग समथिंग, इट विल बी रिटन विथ स्मॉल और कैपिटल यूजिंग द कैप्स लॉक. उसके बाद चिल्ड्रन, हियर इज़ द लॉन्गेस्ट की फाउंड एट द बॉटम ऑफ द कीबोर्ड. सबसे नीचे, बॉटम का मतलब सबसे नीचे जो की होती है, इसको हम कहते हैं स्पेस बार की. इन कीज़ को हम स्पेस बार की कहते हैं. सो दीज कीज़ आर द लॉन्गेस्ट की फाउंड ऑन द कीबोर्ड, और इनको यूज़ करके हम किसी भी लेटर के बीच में स्पेस देते हैं. और उसके बाद एंटर की है. एंटर की का मतलब होता है, अगर हम एक लाइन में राइट कर रहे हैं, फिर राइटिंग और टाइपिंग इन अ लाइन, और वो लाइन फुल हो जाती है, यानी वो लाइन ख़त्म हो जाती है, एंड यू वांट टू कम टू द नेक्स्ट लाइन, सो यू प्रेस एंटर की. अगर आपको लाइन चेंज करनी है तो यू नीड टू प्रेस एंटर की. सो चिल्ड्रन, देन देर इज़ अ बैक स्पेस की. बैक स्पेस की का मतलब होता है, इफ़ यू वांट टू डिलीट एनी कैरेक्टर लेफ्ट टू द कर्सर, यू यूज़ बैक स्पेस की. बैक स्पेस की को हम यूज़ करके किसी भी लेटर को कर्सर के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ डिलीट कर सकते हैं. सो चिल्ड्रन, दीज आर द कीज़ विच आर फाउंड ऑन द keyboard and about which we will be reading in this chapter. Now children, whatever we saw on the keyboard we are going to read here. So सबसे पहले we have alphabet key. यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले alphabet keys है about which we are going to read here. तो जो अभी हमने डिस्कस किया वही हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं. तो here children you can see there are 26 alphabet keys. Just now I told you that there are 26 alphabet keys marked on a keyboard. There are 26 alphabet keys marked on a keyboard with the letter A to Z, जिस पे letter A to Z लिखा होता है. And these keys help you to type words and sentences. अब इन alphabet keys को use करके हम words या sentences को टाइप कर सकते हैं. Now the keyboard does not have keys in an alphabetical order. लेकिन children, as we know कि जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, these are arranged from A to Z in a alphabetical order. लेकिन जब कीबोर्ड में हम इनको देखते हैं तो these are not at all arranged in a alphabetical order. आपको एक सीक्वेंस में ये नहीं दिखाई देंगे, but at random these are arranged. उसके बाद चिल्ड्रन यू कैन सी हियर, इट इज़ नॉट एट ऑल अरेंज्ड इन अ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं अरेंज किया हुआ है, वो कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा है. सो दीज आर द अल्फ़ाबेट कीज चिल्ड्रन. दीज आर फ्रॉम A to Z, लेकिन इनकी कोई सीक्वेंस नहीं है. सो चिल्ड्रन, we have studied about alphabet keys. The first type of keys found on the keyboard are alphabet keys. There are 26 alphabet keys marked as keyboard, marked on a keyboard with the letters A to Z. These keys help to type words and sentences. और ये keys help करते हैं हमें words और sentences को type करने में. The keyboard does not have keys in a alphabetical order. As you know children, जो अल्फ़ाबेटिकल कीज़ होते हैं एक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं. दे स्टार्ट फ्रॉम A एंड एंड एट Z. लेकिन कीबोर्ड में आप देख सकते हो दीज आर नॉट अरेंज्ड इन अ सीक्वेंस. सीक्वेंस में अरेंज्ड नहीं है. यू कैन सी QWERTYUIOP, मतलब किसी सीक्वेंस में नहीं है, ऐसे एट रैंडम दीज आर अरेंज्ड. बट ऑल दीज आर कॉल्ड, ऑल दीज टुगेदर आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट की. इनको हम एक साथ अल्फ़ाबेट की कहते हैं. सो यूजिंग दीज कीज चिल्ड्रन यू कैन टाइप वर्ड्स, लेटर्स और सेंटेंसेस. इनको यूज़ करके हम लेटर्स, वर्ड्स या सेंटेंसेस को अपने कंप्यूटर पे टाइप कर सकते हैं. एंड दीज आर द वंस विच आर यूज्ड फॉर राइटिंग समथिंग और टाइपिंग समथिंग ऑन द कंप्यूटर. सो चिल्ड्रन, आई होप you all have understood about the alphabet key. Now next type of key is number key. नंबर कीज़ जो होते हैं चिल्ड्रन, वी हैव 10 नंबर कीज़ ऑन अ कीबोर्ड. जैसा कि मैंने बताया हमारे पास 10 नंबर कीज़ होते हैं कीबोर्ड में, मार्क्ड विथ नंबर्स 1 to 9 एंड 0, जिनको मार्क किया हुआ है 1 से 9 तक, 1 to 9 और 0. दीज आर 10 इन नंबर. आप देख सकते हो 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9 and 0. So these numbers can be marked as 1 to 9 and 0. Using these numbers, children, we can do any type of calculation, or we can write countings, or we can write tables, or we can do sums also. So these are the keys which are used for doing any kind of sums, for writing tables, or for writing countings. So these are called number keys, about which we have studied before also. So now children, after these number keys, we have special keys. There are some special keys about which we are going to read. So children, there are many special keys present on the keyboard, but we will be reading about only few of them. So children, as I told you, there are two enter keys. एक इस शेप में होता है और दूसरा वाला इस शेप में होता है. This one is found along with the alphabet key. Alphabet key के बगल में होता है, and this one is found along with the numeric keypad. ये numeric keypad में पाया जाता है. So if somebody asks you how many enter keys are there on the keyboard, you will say there are two enter keys found on the keyboard. Now enter key is used to move the cursor to the next line while typing. As I told you children, ये जो enter key होता है, ये इनको यूज़ करके हम एक लाइन से दूसरी लाइन में पहुंच सकते हैं. So enter key is used to move the cursor to the next line while typing. टाइपिंग करते टाइम अगर हमको एक लाइन से दूसरे लाइन में शिफ्ट करना है या मूव करना है, तो वी यूज़ एंटर की. एंटर की इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न की. हम इसे रिटर्न की भी कहते हैं. दिस की इज़ ऑल्सो नोन एज रिटर्न की. इसको यूज़ करके हम किसी भी लाइन में रिटर्न करते हैं, इसलिए हम इसको रिटर्न की भी बोलते हैं. नाउ एज आई टोल्ड यू, देयर आर टू एंटर कीज फाउंड ऑन द कीबोर्ड. अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा कीबोर्ड होता है उस पर दो एंटर की होते हैं. एक नंबर की, एक अल्फ़ाबेट की पैड के बगल में होता है. वन इज़ जस्ट बिसाइड द अल्फ़ाबेट की कीज़, और द सेकेंड वन इज़ फाउंड विद द न्यूमेरिक कीपैड. दूसरे वाले न्यूमेरिक कीपैड के साथ होते हैं. नाउ आफ्टर दिस चिल्ड्रन, what is a cursor? Have you seen cursor children? Cursor plays important role while typing or doing anything on the computer. तो children, a cursor is a small blinking line. एक छोटी सी blinking line होती है on the screen which is controlled by the mouse, जिसे माउस से भी हम कंट्रोल करते हैं, और कीबोर्ड पे हम जो भी टाइप करते हैं वो कर्सर ही उसको फॉलो करता है. तो कर्सर जैसे जैसे हम लिखते हैं, कर्सर की पोजीशन चेंज होती रहती है, और जहाँ पे कर्सर होता है वहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं. जो भी हम टाइप करते हैं वो कर्सर के पोजीशन से ही टाइप होना शुरू होता है. आफ्टर दैट चिल्ड्रन, वी हैव स्पेस बार की. सो चिल्ड्रन, देर इज़ वन स्पेशल की which is also the longest key found on the keyboard, and this space bar key is very important as we give space using this space bar key. जो space bar key होता है, this is one of the special keys and which is the longest key on the keyboard. हमारे keyboard में आपको अगर space bar पहचानना है तो you have to find which one is the longest key. जो भी longest key है जो keyboard में पाया जाता है उसको हम स्पेस बार की कहते हैं. इट इज़ यूज्ड टू गिव अ ब्लैंक स्पेस टू द राइट ऑफ अ वर्ड. किसी भी वर्ड के बाद में अगर आपको के बगल में या बाद में आपको स्पेस देना है तो आप स्पेस बार की को यूज़ करके स्पेस देते हो. एंड दिस की इज़ यूज्ड टू गिव स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स, टू लेटर्स, और ऑन द राइट ऑफ एनी वर्ड. तो इसे यूज़ करके हम किसी भी लेटर, किसी भी वर्ड में हम स्पेस देते हैं. एज यू नो चिल्ड्रन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स इन ऑर्डर टू मेक क्लैरिटी वाइल रीडिंग. पढ़ने में समझ में आए, इसके लिए हम जब भी कुछ लिखते हैं तो हर वर्ड के बाद एक स्पेस देते हैं या लीव करते हैं. दैट स्पेस इज़ गिवन यूजिंग दिस space bar, and you can see this is the longest key present on the keyboard. So type a sentence, I love my country. Type a sentence, I love my country. Without using a space bar, it will look I love my country.
लेकिन यहाँ पे आई लव माई कंट्री को वी वोंट बी एबल टू रीड एज देर इज़ नो गैप बिटवीन द लेटर्स, तो हमें ये वर्ड पढ़ने में बहुत मुश्किल होगी और ये एकदम समझ के बाहर की चीज़ है. सो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड वॉट एग्जैक्टली इज़ रिटन. नाउ टाइप द सेंटेंस यूजिंग द स्पेस बार की. अब टाइप द सेंटेंस यूजिंग द स्पेस बार की. अब जब हम इसी सेंटेंस को स्पेस बार की के साथ टाइप करेंगे तो चिल्ड्रन यू कैन सी देर इज़ अ पिंक कलर्ड बॉक्स और द स्क्वायर बॉक्स गिवन इन प्लेस ऑफ द स्पेस. जहाँ जहाँ हमें स्पेस देना है वहाँ पे हम एक पिंक कलर का बॉक्स प्लेस कर रहे हैं. दिस बॉक्स मीन्स देर इज़ अ स्पेस बिटवीन द वर्ड्स. आई के बाद एक स्पेस है, हम एक बार स्पेस बार एंटर करेंगे, लव लिखेंगे, फिर स्पेस देंगे, माई लिखेंगे, फिर स्पेस देंगे और कंट्री लिखेंगे. सो दिस इज़ हाउ चिल्ड्रन वी राइट एनीथिंग एनीवेयर. नाउ अब इसके बाद हमारे पास है फर्स्ट टाइप आई देन प्रेस स्पेस, टाइप आई देन प्रेस स्पेस, टाइप लव again press space bar, then type my, again press the space bar and then type country. In this way you shall be able to type a complete sentence with proper space. So children, in this way you can write any sentence properly or so that it is understood or read easily. So this is how children we use the space bar for giving space while writing any sentence. Now children, next type of special key is caps lock. This is another important key children. Using this key we can write anything in small on capital letter. Children, caps lock is an on off key. ये एक on off key होती है. If the caps lock key is on, अगर आपका caps lock key on है तो capital letters are typed. तो जो भी आप टाइप करोगे it will be written with capital letter, and if the caps lock key is off so the small letters are typed. अगर आप caps lock को off कर दोगे तो जो भी आप लिखोगे that will be written with small letter. So children, अगर caps lock को आप use करते हो तो caps lock is an ऑन ऑफ की. ये जो कैप्स लॉक होता है इसे आप ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हो. अगर आप ऑन रखते हो कैप्स लॉक को तो जो भी आप टाइप करते हो दैट विल बी रिटन विथ कैपिटल लेटर, एंड इफ़ यू कीप द कैप्स लॉक ऑफ तो जो भी आप टाइप करते हो दैट विल बी रिटन विथ स्मॉल लेटर. सो देयर इज़ ऑप्शन. इफ़ यू वांट टू राइट कैपिटल you will keep the caps lock on, and if you want to write in small you have to keep the caps lock off. Now children, next type of key is backspace. So children, as you know कि using the backspace you can erase any letter or you will erase towards the left. जैसे कि आपका कर्सर है चिल्ड्रन, अगर आपका कर्सर यहाँ पे है तो it will delete the character towards the left. कर्सर के लेफ्ट की तरफ एक लेटर एक बार क्लिक करने से हम कर्सर के लेफ्ट का एक लेटर इरेज करते हैं या डिलीट करते हैं. सो बैकस्पेस की इज़ यूज्ड टू इरेज द लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर. तो बच्चों, जो बैकस्पेस होता है उसको यूज़ करके हम कर्सर के लेफ्ट में, आपका लेफ्ट हैंड साइड है, आप अपने लेफ्ट हैंड साइड से समझ सकते हो कि जो आपके लेफ्ट हैंड उसी तरह से कर्सर के लेफ्ट हैंड साइड में जो लेटर होता है वो डिलीट होगा. तो दिस इज़ द लास्ट की इन द एरो ऑफ द नंबर कीज़ मार्क्ड एज बैकस्पेस. आप देख सकते हो जो नंबर की का एरो रो है जिसमें नंबर कीज़ आर गिवन, उसके लास्ट में देयर इज़ अ की जिसको हम बैकस्पेस कहते हैं. इसको जब भी हम कुछ गलत करते हैं और हमको मिटाना होता है तो हम बैकस्पेस को यूज़ करके कर्सर के लेफ़्ट की तरफ हम चीज़ों को इरेज करते हैं. और एक बार क्लिक करेंगे तो एक कैरेक्टर डिलीट होगा, जितनी बार हम क्लिक करेंगे उतने कैरेक्टर्स टूवर्ड्स द लेफ्ट विल बी डिलीटेड और इरेज्ड. डिलीट होगा या इरेज होगा. तो दिस इज़ अनदर की चिल्ड्रन, and this key is called backspace. This key is used to delete the character towards the left of the cursor. Now there are some more special keys on the keyboard like shift. There are some more keys on the keyboard like shift, alt,
टैब एट्सेट्रा। जो शिफ्ट, आल्ट, टैब कीज़ होती हैं ये कुछ और स्पेशल कीज़ है। ये कीज़ को भी यूज़ हम कर सकते हैं, अबाउट विच वी विल टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास। लेकिन हम इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, हम इन कीज़ के बारे में अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो चिल्ड्रन, जस्ट नाउ वी स्टडीड अबाउट डिफरेंट स्पेशल कीज़ and we will be revising these keys once again in our next video. Till then, thank you.